डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास की हॉर्नबिल से 4th लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसकी रचना नथैली टॉब्रॉय ने की है, इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इस लेसन में जो हमारी लेखिका हैं वे उस जादुई संसार के ऊपर प्रकाश डालती हैं जिसे कि एक चित्रकारी हमारे सामने उजागर करती है। परंतु इस बात के लिए हमको या तो रचनाकार की दृष्टि उधार लेनी होती है या फिर उसके मस्तिष्क में प्रवेश करना होता है। हम उन दो विभिन्न लक्ष्यों से परिचित होते हैं जिन्हें यूरोपीय तथा चाइनीज दोनों ही कला स्वरूप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, चाहे यह एक भ्रम उत्पन्न करने वाला नियम विरुद्ध कार्य हो या फिर एशिया में आंतरिक जीवन और आत्मा का सार तत्व हो। एक दृश्यावली उस अनजानी और अनदेखी वस्तु को समझने के लिए कलाकार का एक प्रयास है जो अपने आप में उससे हर वस्तु को अभिव्यक्त करती है जो भौतिक है। तो आए देखते हैं इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, contrast the Chinese view of art with the European view with examples। इसका आंसर लिखेंगे, यूरोपियन आर्ट इज बेस्ड ऑन डेलिकेट रियलिज्म, आई देयर पेंटिंग्स क्रिएट ए मेक बिलीव वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, a perfect illusionistic likeness is what European artists strive to achieve in their paintings, as we see Quentin Mats's paint a fly. The European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. The Chinese painter does not choose a single view point. His landscape is not a real one, and one can enter it from any point, then travel in it. A Chinese painter does not try to reproduce an actual view. He goes beyond material appearances। दूसरा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है वो है, व्हाट वंडरफुल tale is told about Wu Doji। दूसरा टैग क्वेश्चन है इसमें, व्हाट लाइट डज ही थ्रो ऑन द चाइनीज लैंडस्केप। तो इसका आंसर लिखेंगे, इन चाइना वी कम ए cross stand also about art and painting. These reveal the spirit of Chinese art. One such wonderful tale is told about the painter Wu Daozi of the 8th century. He was engaged by the emperor to decorate the palace balls. Daoji
worked behind a curtain. He allowed only the emperor to see the landscapes. He was painting the the king admired the beautiful trees and mountains drawn by the artist. Then he saw a cave in the painting and asked its meaning. The artist said that a spirit lived in the cave. He clapped his hands and the cave opened. Wu Daoji invited the king to enter in it with him. What the king was left wonder struck while the artist entered the cave. The emperor was left behind. The cave door closed and the artist disappeared as if by magic. The whole wall painting also disappeared. तो इसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में तीसरा इम्पोर्टेंट है उसे और देखते हैं। तो ध्यान दें, व्हाट वाज नेकचंद्स यूनिक अचीवमेंट एंड गिफ्ट टू द वर्ल्ड? हाउ डिड ही गेट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन? तो आंसर इसका द इंडिया born and altogether untrained artist Nekchand developed the concept or outsider art. He created a paradise using waste material at Chandigarh. He cut and cleaned the rocky place and created his dream. This drew the attention of the world. His art is the art of an untrained visionary side. It is said to be the art of those who have no right to be called artists because they have received no formal training. But sometimes such artists show remarkable talent and insight. Nekchand's creation is known as the Rock Garden. The Swiss Commission organized a European exhibition in 2005 on Nekchand's works of art. It was shown in various other European countries. Thus Nekchand, by virtue of his untutored talent, won international recognition. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं इस लेसन में उन्हें देखते हैं। व्हेन डिड द पेंटर वू दोजी लिव एंड वेयर डिड ही बिलोंग टू? आंसर इसका वू दोजी बिलोंग टू चाइना एंड लिव्ड इन द 8th century। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिज लास्ट पेंटिंग? तो आंसर इसका हिज लास्ट पेंटिंग वाज लैंडस्केप विच वाज कमीशन्ड बाई द टैंग एम्परर जुआनजोंग टू डेकोरेट द वॉल। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेंटर dwelt in the cave of the picture? तो इसका आंसर है according to the painter a spirit dwelt in the cave
of the picture। चौथा क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ सच स्टोरीज इन चाइनास क्लासिकल एजुकेशन। तो आंसर इसका, सच स्टोरीज हेल्प्ड द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। पांचवा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड वू दोजी ट्राई टू शो द एम्परर while showing him his painting। तो आंसर है इसका, he wanted to show the inner aspect of the work of art to the emperor। छठवां जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, what does the story of a master blacksmith Quentin Matsys रिवील। तो आंसर इसका, द स्टोरी ऑफ क्वांटिन मैट्सिस रिवील्स दैट आर्ट इज नॉट ए स्लेव टू एनी फॉर्मल ट्रेनिंग और एजुकेशन। इट कैन सरप्राइज द वर्ल्ड विद अ सडन स्पार्क ऑफ टैलेंट इन ए कॉमन मैन। सातवां जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट गोल डज द वेस्टर्न पेंटिंग ट्राई टू अचीव। तो आंसर इसका, द वेस्टर्न पेंटिंग ट्राइज टू अचीव ए परफेक्ट इल्यूसिनेटिक लाइकनेस। और में जो आठवां शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द चाइनीज आर्टिस्ट वांट। तो आंसर इसका, ए चाइनीज आर्टिस्ट वांट्स यू टू गेट इनटू हिज माइंड एंड द पिक्चर प्रेजेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इनर लैंडस्केप। इसके बाद में जो नौवां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस चैप्टर ड्वेल्स ऑन। तो आंसर इसका, दिस चैप्टर ड्वेल्स ऑन एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग। 10वां और लास्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट थिंग्स आर द रॉक गार्डन क्रिएटेड विद। तो इसका आंसर है, द रॉक गार्डन हैज बीन स्कल्प्टेड विद स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल। तो इस तरह से इस लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल के लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हुए। इन्हें आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और याद करेंगे। थैंक्स।